Yes. So in today's English class, we are going to start with pronouns and the kinds of pronouns. This topic we have done last year also, and I hope कि जिन बच्चों ने last year अच्छे से सुना था, उन्हें अभी भी ये topic याद होगा. So before we begin with the kinds of pronouns, we'll first quickly recall what a pronoun is. So Satvir, please unmute yourself and tell me what is a pronoun quickly, please. I think I'm audible, Satvir. All right. Satvir, you are muted. You are muted, bete. Unmute yourself. Right, I'll try to be loud. Try to be louder. Simran, quickly tell me. Satvir, this is really bad. What you are doing? Yes, Simran. Ma'am, pronoun is used for a noun. Is used in place of a noun. The words that are used in place of the nouns is called pronoun, right? So a pronoun is a word which is used in place of a noun. हम बार बार किसी का नेम लेते हैं बात करते हुए, that doesn't look good. वो बार बार अच्छा नहीं लगता सुनने के लिए, तो इसीलिए हम उस नेम की जगह कई बार कुछ और वर्ड्स यूज कर लेते हैं. those words are called pronouns. That's why it is called pronoun. Pronoun word में भी आप ध्यान से देखेंगे तो I told you last year also, noun word आ रहा है ना. So इस तरह से आप याद रख सकते हैं. The words that are used in place of the nouns are called pronouns. Now let us see an example quickly. Rima is my friend. So we are talking about Rima. Rima is the name of a girl. But I don't want to say again and again Rima, Rima. मैं बार बार बोलूँ Rima मेरी friend है, Rima ऐसे करती है, Rima ऐसे करती है. So that doesn't sound good. वो अच्छा नहीं लगता सुनने में. So what we do, we use a different word for that name. उस नाम की जगह हम कुछ और word use कर लेते हैं. For example, here we have used she always stands first in the class. वो हमेशा class में first आती है. So she here is a word that we have used in place of the word Rima. Rima की जगह पे हमने she use किया है. She's also a good dancer. वो एक अच्छी dancer भी है. Right? If I say everybody likes her, उसको सारे पसंद करते हैं. So her word भी क्या हो गया, एक pronoun है. So here she and her both are the pronouns that we are using in place of the word Rima. Right? So we have recalled what a pronoun is. Now let us move further. Right. So the different kinds of pronouns that we are going to do are a personal pronoun, reflexive pronouns. I hope आपको पढ़ के याद आ रहे होंगे सारे pronouns, and I'm going to ask you also. Emphasizing pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun. ये सब हमने last year किए थे और यही हम इस बार भी करने वाले हैं. All right. So before we move to the personal pronouns, will quickly tell me what personal pronouns are. Let me see. Manvinder, unmute yourself. Manvinder, unmute yourself and tell me what are personal pronouns. Rest of you can also write the answers in the chat box. मैम पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जिसके अंदर हम is, are, am and I use करते हैं. Is, am, are, these are all you are talking about the helping verbs, bete. These are helping verbs. No, that was not the correct answer. Dhairya will tell me the correct answer. Yes, Dhairya. Very good. Right. Dhairya, where have you gone? Okay, so I'm getting a few answers here in the chat box. Also, those are also correct. Yes, I don't know why the Dhairya is not able to speak. Brahmjot, can you please unmute yourself? Brahmjot. Your voice is not. Yes, ma'am. Brahmjot, yes, bete. What are personal pronouns, Brahmjot? Ma'am, the pronouns that ma'am, these pronouns stand for three persons. Very good, Brahmjot. Very good. So could you please tell me what are these three? Ma'am, first person, second person, and These are the third three person. persons. हाँ, these are the three persons, Brahmjot. In persons के लिए कौन-कौन से personal pronoun use होते हैं? Ma'am, first person पे होते हैं I, we और me. Very good, Brahmjot. Excellent. Very good. हाँ जी, आगे बोलिए. Ma'am, second पे होते हैं th, thee, you या yours. All right, very good. Next, third. Ma'am, he, she, him, hers, they, them.
हर्स नहीं बेटा, हर, ठीक है, हर्स पोजेसिव हो जाता है। वेरी गुड ब्रह्मज्योत, एक्सीलेंट। ओके, सो पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन इज द, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द, हम फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, जल्दी से बताइए, क्विकली, फास्ट करना हमने, so that we can cover. First person is, who's called a first person? Very good, very good, very good. Who's speaking? Now if I'm speaking, I'll be the first person. मैं बोल रही हूँ तो मैं first person हूँ। अभी ब्रह्मज्योत बोल रहा था और मैं सुन रही थी। In that case, ब्रह्मज्योत was the first person. Very good. And who's the second person? Quickly. Who is listening? Harshita has written. Very good. Yes, very good. Now I'm speaking. I'm the first person. I'm the speaker. आप सब मेरी बात सुन रहे हैं. So you all are the second person or the listener. That is called the second person. Very good. And who's the third person? Who's the third person? Yes. Okay. अच्छा चलो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी third person कौन है? What is the third person right now? Yes, you are absolutely correct. Whatever you are writing. अभी हम किस बारे में बात कर रहे हैं? दैट वुड बी द थर्ड पर्सन ना, क्या बात करें? वेरी गुड जपजी, प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन थर्ड पर्सन है क्योंकि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सारे प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। सो प्रोनाउन हियर राइट नाउ इज द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पर्सन का मतलब पर्सन नहीं होता, जरूरी नहीं कि कोई इंसान है। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट विल बिकम द थर्ड पर्सन, right? So if I'm talking about say I'm talking something about Phagwara with you, so Phagwara will become the third person, right? So याद आएगा होगा सबको जल्दी से। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन इज द लिसनर एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। सो हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी फर्स्ट पर्सन के लिए हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर वो सिंगुलर है, मैं अकेली बोल रही हूँ, मैं अपने लिए क्या प्रोनाउन यूज करूंगी? आई। मेरे साथ कोई और भी पर्सन है, हम दो लोग बोल रहे हैं, तो आई की जगह क्या हो जाएगा? वी, राइट? फिर है मी। मी मीन्स मैं, ठीक है, मुझे। अस मीन्स हमें। सो आई, वी, मी और अस, ये फोर जो है हमारे फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस हैं। सेकंड पर्सन यू जो है वो दैट रिमेन सेम। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था आपको कि अगर मैं एक बच्चे से बात कर रही हूँ, हरनूर से बात कर रही हूँ, हरनूर के लिए क्या वर्ड यूज करूंगी? यू। और मैं आप सारी पूरी क्लास से बात करती हूँ तब भी मैं आप सबके लिए क्या वर्ड यूज करती हूँ? you word use करती हूँ. So you is a single word that we could use for the second person, whether it is singular or plural. दोनों के लिए see you he use होता है. And now if we talk about the third person, अगर हम third person किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं किसी boy के बारे में बात कर रही हूँ, so उसके लिए क्या word use करूंगी? he. गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ तो she. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, वन से ज्यादा लोग हैं तो they. It is used for non-living thing or for a animal or for an animal or a bird. सिंगुलर के लिए इट यूज होता है। हिम और हर मीन्स उन्हें। हिम मीन्स उस बॉय को, हर मीन्स उस गर्ल को। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड, आई हैव नॉट रिटन वन वर्ड हियर। वेरी गुड, व्हाट इज दैट वर्ड दैट आई हैव मिस्ड हियर? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, वन वर्ड इज मिसिंग हियर। ही, शी, दे, इट। नो, योर्स इज पोजेसिव। योर्स तो बता रहा है किसकी है। Harshita is correct. Arshdeep is also correct. It is them. Them. Them यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। They means वो और them means उन्हें. So it is them, right? So आपको I hope याद आया होगा. And I told you बेटे personal pronouns आप usually जब हम आपको exercises देते हैं ना to pick out the pronoun and tell the kind, तो most of the times बच्चे personal pronouns को pick out करने में भूल जाते हैं. So this is very important. You need to take care personal pronouns क्या होते हैं, and they are the easiest one what you are doing since class 1 and 2. Okay, now let's just move further. We'll talk about reflexive pronoun. Now, reflexive and emphasizing. Who's this? Reflexive and emphasizing दोनों एक तरह के pronouns होते हैं देखने में, है ना? क्या? What is common between both of them? Reflexive और emphasizing pronouns में common क्या होता है दोनों में? दोनों में क्या कॉमन होता है? सेल्फ। वेरी गुड पुष्पिंदर, वेरी गुड अभिनीत। दोनों में सेल्फ वर्ड। सक्षम गुप्ता बेटे प्लीज कंट्रोल योर हैंड्स।
सो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की बात करते हैं, दोनों में सेल्फ वर्ड आता है। जिन भी वर्ड्स के पीछे सेल्फ, SELF सेल्फ, या SELVES सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल हो गया ना सेल्स, अगर वो आते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, दोनों क्या बन जाते हैं, दोनों या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे या फिर वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होंगे, राइट। सो जहां पे भी आपको सेल्फ वर्ड या नजर आ गया या सेल्स वर्ड नजर आ गया, समझ जाओ कि या तो ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेसाइजिंग है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पता करेंगे रिफ्लेक्सिव है या एम्फेसाइजिंग है। हाँ जी, कैन एनीबडी अनम्यूट हिमसेल्फ एंड टेल मी अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट, सबसे इजी वे क्या है रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग को और डिसाइड करने में? नहीं करके तो करना ही नहीं, कहना ही नहीं करना, आई सेड कहना ही नहीं करना, कहना ही नहीं करना, just raise your hand. You have an option here in Zoom meeting to raise your hand. याद रहता है आपको वो ऑप्शन के, भूल जाते हैं? Why do I get all these same students all the time? I want somebody new. Aryan, are you there, bete? Are you listening to me? Aryan Sharma? Aryan Sharma? वेरी नाइस, डोंट आंसर, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छे एटिकेट्स आपके कि टीचर कुछ बोल रही है तो आगे से जवाब ही नहीं दो, वेरी नाइस बेटे। ओके, अर्शदीप फ्रॉम 5th पिंक, अर्शदीप फ्रॉम 5th पिंक, यस बेटे, यस। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट whether a pronoun is a reflexive pronoun or an emphasizing pronoun? Ma'am, I don't know. Why you don't know? We have done this in class 4. Can I? Ma'am, can I? Yes. No. बेटे can I कहोगे तो वैसे ही I'll not allow. Wait a minute, let me try with somebody else, then I'll give you a chance. Jashiva. Jashiva, are you listening to me? Very nice. Don't unmute yourself. Diksha, you wanted to speak? Yes. Diksha, tell me the answer. Diksha? Ma'am, can I? I asked Diksha. Now she unmuted herself. Now when I'm asking her the answer, she's not unmuting herself. Ains, quickly bete. मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का ये होता है मैम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आएंगे और मैम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन वो वर्ब से पहले वर्ब से पहले आएंगे, वर्ब से पहले नहीं आते हैं। कहाँ आते हैं वो? चलो ठीक है, this much is correct. इतना मैं accept. Wait, who is this? Can I? Who was मैम this? कैन आई? बेटे who is this? Who is this? Can I कौन बोल रहा है बार बार अनम्यूट करके? Okay, now look at the sentence. Sentence पे देखते हैं हम on the screen. Myself, ourselves, yourself, himself, herself, itself, themselves. ये सारे क्या हैं? रिफ्लेक्सिव हैं, हो सकते हैं, और they can also be emphasizing. But वो कहाँ पे रिफ्लेक्सिव होंगे? यहाँ पे प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे सारे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, आई होप आपको यू मस्ट रिमेंबर कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड ऑब्जेक्ट जिसपे एक्शन का इफेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये हमने लास्ट ईयर बहुत डिटेल में किया था इन द काइंड्स ऑफ वर्ब, राइट। नाउ सेकेंड थिंग इज कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा हमेशा वर्ब के एग्जैक्टली बाद आता है। लुक एट द सेंटेंसेस गिवन हियर। अर्शदीप फ्रॉम ग्रीन सेक्शन, पे अटेंशन। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम। नाउ व्हाट इज द वर्ब हियर? सारे फटाफट से स्क्रीन पे दिखेंगे। यहाँ पे वर्ब है हमारी लॉक्ड, ठीक है। सो हिमसेल्फ वर्ड हमारा कहाँ आ रहा है? लॉक वर्ब के बिल्कुल बाद आ रहा है। वेट अ मिनट बेटे। अर्शदीप कौर, 5th green, stop making faces and pay attention in the class. Yes. So जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सेल्फ वाला जो वर्ड है, वो एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है? वर्ब के बाद आ रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, she hurt herself.
herself वर्ड कहाँ आ रहा है? hurt के बाद. hurt क्या है यहाँ पे? verb. So again ये word immediately कहाँ आ रहा है? verb के बाद आ रहा है. Next, I blamed myself for the loss. So blamed word यहाँ पे verb है और myself, self वाला जो word है वो कहाँ आ रहा है? Immediately किसके बाद आ रहा है? verb के बाद आ रहा है. So a reflexive pronoun always comes after the verb. verb के immediately बाद आता है. Very good. Okay. So ये है very nice. This Janvi has given the answer. Emphasizing comes after a noun or a pronoun. Very nice, Janvi. So this is basically reflexive pronoun. अब चलो एक चीज तो हमने चेक कर ली कि ये verb के immediately बाद आता है. Second चीज देखो क्या ये object है यहाँ पे? देखो he locked himself in the room. He locked whom? किसको lock किया? Himself. So himself यहाँ पे object भी बन गया. Who और what का आंसर देता है हमारा object. ठीक है. नेक्स्ट, शी हर्ट हरसेल्फ. शी हर्ट किसको हर्ट किया? हरसेल्फ, खुद को ही हर्ट कर लिया. सो हरसेल्फ इसमें भी क्या बन गया हमारा? इसमें भी हमारा सॉरी ऑब्जेक्ट है. आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर द लॉस. माई सेल्फ को अगर हम देखें तो मैंने किसको ब्लेम किया? ऑब्जेक्ट क्या है? ब्लेम किसके ऊपर जा रहा है? किसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है मेरे एक्शन का? माई सेल्फ, खुद को ही कर रही हूँ मैं. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो गया हमारे ये सारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. आई टोल्ड यू वन मोर वे कि दोनों में डिफरेंस आप कैसे पता कर सकते हैं. चलो पहले हम ना एम्फसाइजिंग करते हैं, फिर आई रिपीट एंड आस्क यू. नाउ लेट अस कम टू एम्फसाइजिंग. एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस आर यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू पुट स्ट्रेस. किसी बात पे हमने सिर्फ अपने एम्फसाइज करना. क्या होता है एम्फसाइज करना? किसी चीज पे जोर डालना, स्ट्रेस डालना. अपनी बात मनवाने के लिए बार बार करते हो ना उस बात को, बार बार अपनी कोई बात मनवानी तो उसको बार बार बोलते हो. तो आप क्या करते हो? उस बात को एम्फसाइज करो. क्यों? क्योंकि आपने अपनी बात मनवानी है. सिमिलरली एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी बात पे जोर डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं. Let us take the example. I myself washed the clothes. मैंने खुद ही अपने कपड़े धोए. अब मैं इस बात पे आपको बार बार ये बात सुनाना चाह रही हूँ कि मैंने तो अपने कपड़े खुद ही धोए. इस बात पे मैं स्ट्रेस करना चाह रही हूँ, एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि अपना काम मैंने खुद ही किया है, किसी ने नहीं किया मेरा काम, मैंने ही किया. तो मैं इस चीज पे स्ट्रेस कर रही हूँ. ठीक है. सो माई सेल्फ वर्ड जो है वो यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है? सिर्फ मेरी बात को जोर देने के लिए, मेरी बात पे स्ट्रेस देने के लिए. सो अब यहाँ पे देखो माई सेल्फ वर्ड क्या किसी वर्ब के बाद आ रहा है? नो, आई के बाद आ रहा है. आई क्या है? प्रोनाउन है. सो एम्फसाइजिंग जो प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ब के बाद नहीं आते. वो किसके बाद आते हैं? या तो किसी नाउन के बाद आएंगे या फिर किसी प्रोनाउन के बाद आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ही हिमसेल्फ लॉक्ड द रूम. अब यहाँ पे मैं इसका हिंदी में मीनिंग देखो. ही हिमसेल्फ लॉक्ड रूम, उसने खुद ही रूम को लॉक किया. मैं ये भी कह सकती थी ना कि उसने रूम को लॉक किया, पर मैंने कहा नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, नहीं, उसने खुद ही रूम को लॉक किया. इसका मतलब मैं इस बात पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि रूम किसने लॉक किया? उसने खुद किया. इस बात को मैं एम्फसाइज करने के लिए हिमसेल्फ वर्ड यूज कर रही हूँ. सो हिमसेल्फ यहाँ पे एम्फसाइजिंग है प्रोनाउन. और अगेन आप देखो इस सेंटेंस में हिमसेल्फ जो वर्ड है वो वर्ब के बाद नहीं आ रहा. वो किसके बाद आ रहा है? ही के बाद आ रहा है. ही क्या है? प्रोनाउन है. सो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहाँ आएंगे? किसी दूसरे प्रोनाउन के बाद में या फिर किसी नाउन के बाद में आएंगे, कभी भी वर्ब के बाद में नहीं आते हैं. थर्ड सेंटेंस, ही क्लीन द रूम हिमसेल्फ. अब मैं फिर से अपनी हिमसेल्फ वर्ड का क्यों यूज कर रही हूँ? अपनी बात पे स्ट्रेस देने के लिए मैं कह रही हूँ. मैं ये भी कह सकती थी ना कि उसने रूम साफ किया. ही क्लीन द रूम, उसने रूम साफ किया. लेकिन मैं कह रही हूँ उसने खुद रूम साफ किया. तो मैं यहाँ खुद जो वर्ड है उस पे स्ट्रेस दे रही हूँ. उस वर्ड को क्यों यूज कर रही हूँ? ये सुनाने के लिए कि उसने तो खुद ही किया अपना काम. तो हिमसेल्फ वर्ड जो है वो किस लिए यूज हो रहा है? स्ट्रेस देने के लिए यूज हो रहा है. ठीक है. तो इसलिए वो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है. अब देखो हिमसेल्फ वर्ड जो है वो कहाँ आ रहा है? किसके बाद आ रहा है? रूम के बाद आ रहा है. और रूम क्या होता है? वर्ब होता है. इज रूम अ वर्ब? व्हाट इज रूम? क्विकली इन द चैट बॉक्स. What is room? Very good. Harshita has already given me the answer. I want others also. Very good. Room is a noun. Of course, it is a noun. So again, अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ आएगा. जो रिफ्लेक्सिव, ये देखिए रिफ्लेक्सिव वाले थे वो सारे सेंटेंसेस में प्रोनाउन कहाँ आया था? वर्ब के बाद आया था. और ये वाले जो एम्फसाइजिंग वाले हैं यहाँ पे सारे जो आ रहे हैं हमारे प्रोनाउंस वो कहाँ आ रहे हैं? किसी दूसरे प्रोनाउन के बाद आ रहे हैं या फिर किसी नाउन के बाद आ रहे हैं. सो सबसे इजी वे तो यही था, है ना?
जो मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था। अब एक और चीज देखें, चलो अब यहाँ देखो जरा स्क्रीन पे सारे। अगर मैं यहाँ पे हिमसेल्फ वर्ड फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, सारे ध्यान से देखेंगे, ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम। अब ना स्क्रीन पे हिमसेल्फ वर्ड को हाइड कर दो, अपनी स्क्रीन पे फिंगर रख के हिमसेल्फ वर्ड को हाइड कर दो। अब पढ़ो, ही लॉक्ड इन द रूम, वो रूम में लॉक्ड हो गया, तो ही लॉक्ड इन द रूम, कौन लॉक हो गया? आपको पूरी बात तो मैं पता ही नहीं चल रही। अगर अब हाथ हटा के पढ़ो, ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने खुद को रूम में लॉक कर दिया। अब जब मैंने हिमसेल्फ वर्ड को लगाया तो मेरे सेंटेंस का मीनिंग पूरा समझ आ गया। लेकिन अगर मैं हिमसेल्फ जो मेरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव, उसको हाइड कर देती हूँ, छुपा देती हूँ, तो मेरा मीनिंग क्या हो जाएगा? सेंटेंस का कंप्लीट ही नहीं होगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा। सेकंड सेंटेंस पे चलो दोबारा से करके देखते हैं, ठीक है? चलो फिर से करें। शी हर्ट हरसेल्फ, अब जल्दी से हरसेल्फ को हाइड कर दो, हरसेल्फ को हाइड करो, क्या बचा? शी हर्ट, उसने हर्ट किया। किसको हर्ट किया? मीनिंग कंप्लीट है? नहीं, मीनिंग कंप्लीट नहीं है। लेकिन जब मैं पूरा पढ़ूंगी, शी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को चोट लगाई, फिर मीनिंग क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब चलो अब एम्फेसाइजिंग का एक सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो एम्फेसाइजिंग का, इसमें माई सेल्फ को हाइड कर दो। क्या सेंटेंस बचा हमारा? आई वॉश द क्लोथ्स, मैंने कपड़े धोए। मीनिंग कंप्लीट है? कंप्लीट है ना मीनिंग, है ना? अब मैं दोबारा पढ़ती हूँ, आई माई सेल्फ वॉश द क्लोथ्स, मैंने खुद कपड़े धोए, तब भी मीनिंग ठीक है। यानी कि मैं माई सेल्फ वर्ड को लगाऊं या ना लगाऊं, दोनों ही केसेस में मेरा मीनिंग क्या है? कंप्लीट है। सो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका उसके बिना मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है। लेकिन एम्फेसाइजिंग के होने या ना होने से मीनिंग पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, सिर्फ हम एम्फेसाइजिंग को यूज करते हैं अपनी बात को स्ट्रेस देने के लिए। Clear to everybody? Please be quick. We have only 10 minutes left. I want to move to the next one if it is clear. Hurry up quickly. Show me thumbs. अगर दोनों याद आ गए आपको अच्छे से, reflexive और emphasizing. Clear? Yes, बेटे quickly. जो एम्फेसाइजिंग नाउन होते हैं मैम, अगर उनमें मैम हम माई सेल्फ हर सेल्फ मैम ऐसे हम नहीं लगाए तो मैम फिर भी वो ठीक बनते। हाँ, वो उसका एम्फेसाइजिंग में तभी मीनिंग कंप्लीट होता है, सेंटेंस का मीनिंग नहीं खराब होता, मीनिंग हमें पूरा समझ आता है उसके ना होने से। यही मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्सिव अगर नहीं लगाओगे तो मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा, फिर मीनिंग ही नहीं बनेगा सेंटेंस का। लेकिन एम्फेसाइजिंग कुछ बातों, यस बेटे। मैम आप एम्फेसाइजिंग वाली स्लाइड बोलना। एक मिनट बेटे, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस वे। हाँ जी बोलिए। मैम हम ये भी कर सकते हैं ना, ही हिमसेल्फ क्लीन द रूम। हाँ, he himself, yes बेटे, yes, he himself cleaned the room, that was also fine, तब भी वो emphasizing ही होगा, तब भी वो pronoun के बाद ही आएगा ना, he के बाद, ठीक है? Okay बेटे, now let us move to the next one. जल्दी से next चलते हैं, possessive pronouns. Possessive means possess word करना, मतलब कि कोई चीज किसके पास है। मेरे पास कोई चीज पड़ी हुई है तो मेरी possession में है, वो मेरे पास है, वो मेरी चीज है, ठीक है? तो वो होते हैं possessive pronoun। ऐसे प्रोनाउंस जो हमें ये बताएं कि वो चीज किसको बिलोंग करती है, किसकी है वो चीज, उसे हम possessive pronoun कहते हैं। दिस पेंसिल इज माइन, अब माइन वर्ड, ये पेंसिल मेरी है, तो माइन वर्ड जो है वो क्या बता रहा है? वो हमें ये बता रहा है कि वो चीज किसकी है, पेंसिल किसकी है। माइन वर्ड से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि पेंसिल किसकी है, पेंसिल मेरी है, माइन। सो possessive pronoun ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वो चीज किसकी है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं दिस पेंसिल, दिस इज माय पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है, तो तब भी दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है ना। दिस पेंसिल इज माइन, ये मेरी पेंसिल है, दिस इज माय पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है, तो फिर माय वर्ड यहाँ पे क्या हुआ? कैन एनीबडी टेल मी क्विकली इन द चैट बॉक्स? दिस इज माय पेंसिल, माय वर्ड क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। Yes. Yes. It is adjective. Yes. क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है? Noun आ रहा है। जो adjective होगा वो बताएगा तो सही वो चीज किसकी है, लेकिन उसके बाद क्या आएगा? Noun आएगा। Pronoun के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है, नाउन हमेशा किसके बाद आते हैं? एडजेक्टिव के बाद आते हैं। सो माय वर्ड हालांकि ये बता रहा है हमें किसकी है, लेकिन उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद सॉरी नाउन आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन
नहीं है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखो, दिस ड्रेस इज हिज, ये ड्रेस उसकी है। सो हिज वर्ड जो है उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, और हिज वर्ड हमें ये बता रहा है कि वो ड्रेस किसकी है। किसकी ड्रेस है? हिज, उस बॉय की है। ठीक है, सो इसका मतलब हिज यहाँ पे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट इज हिज ड्रेस। यहाँ पे भी हिज वर्ड यही बता रहा है कि वो ड्रेस किसकी है, लेकिन हिज के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, ये केयरफुली देखना है क्योंकि ये वर्ड दोनों में सेम होता है। हिज के बाद नाउन आ रहा है, ड्रेस में क्या, ड्रेस क्या है? नाउन है। सो अगर हमारे ऐसा वर्ड आए जिसके बाद नाउन आ जाएगा तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। नेक्स्ट वर्ड, दोज बैग्स आर दियर्स, ये बैग उनके हैं। किसके हैं? उनके हैं। सो यहाँ पे दियर्स वर्ड है पोजेसिव प्रोनाउन, वो बता रहा है कि किसके बैग्स हैं। नेक्स्ट, दोज आर देयर बैग्स, ये बैग्स उनके हैं। यहाँ पे भी देयर वर्ड यही बता रहा है कि बैग्स किसके हैं, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि पर्सनल जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं उनमें क्या डिफरेंस आएगा? सबसे बड़ा पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, लेकिन प्रोनाउन के बाद कभी भी दोबारा नाउन नहीं आएगा। याद आ गया आपको ये? Is it do you remember this? Is it clear to everybody? What was the difference between the two? Quickly, if anybody has any doubt. Very good. Similarly, we'll move to the next one. Today we'll cover only one demonstrative pronoun, demonstrative words मैंने बताया था, ऐसे words जो किसी की तरफ point out करते हैं। This, that, those, these, such, ये सारे words क्या होते हैं? जो किसी की तरफ point out करते हैं, right? But again, ये वाले words मैंने बताया था आपको adjective भी हो सकते हैं और ये pronouns भी हो सकते हैं, बताया था ना? दोनों ये वाले सारे words दोनों ही बन सकते हैं। अब वो कब pronoun बनेंगे? जब वो अकेले होंगे, उनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो वो प्रोनाउन बन जाएंगे, और अगर उनके बाद कोई नाउन आएगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। यस बेटे। मैम दिस पेन इज माइन, मैम माइन फिर प्रोनाउन बनेगा ना? हाँ जी, वेरी गुड। वहां पे माइन पॉजेसिव हो जाएगा, दिस के बाद तो पेन आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो इसका मतलब वो तो प्रोनाउन है ही नहीं, वो तो क्या बन गया? दिस यहाँ पे adjective हो गया, demonstrative adjective. Now quickly let us read these sentences. This is my pen. This के बाद क्या आ रहा है? Verb आ रहा है ना? This is my pen. जो pronoun होते हैं ना उनके बाद verb आता है. So this यहाँ पे क्या है? उसके बाद noun नहीं आ रहा ना? Verb आ रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे demonstrative pronoun. That is your house. अगेन दैट के बाद फिर से वर्ब आ रहा है, नाउन नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? दैट वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दीज आर आवर ड्रेसेस, दीज के बाद नाउन नहीं आ रहा है, वर्ब आ रहा है आवर आर, सो वो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर योर शूज, अगेन आर वर्ड आ रहा है, वर्ब है, तो ये भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ लिखा होता ना दोज शूज आर योर्स, दोज शूज आर योर्स, तो दोज के बाद क्या आता है? क्या आया दोज के बाद? क्विकली, दोज, लेट मी राइट, दोज शूज आर योर्स। यस, दोज के बाद शूज आ रहा है, और शूज क्या है? नाउन है। सो इफ यू हैव अ नाउन देन इट वुड बी एडजेक्टिव। जहां नाउन आ गया ना वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और जहां उसके बाद वर्ब आ गया वो प्रोनाउन हो जाएगा। Now we have 2 minutes left. अभी इतना जितना हमने आज किया उतना, please if anybody has any query वो पूछिए, so that tomorrow we'll move to the next one. And before moving to the next one, I'll ask some questions from this also. Anybody who has any doubt? अभी जितने हमने किए हैं, kinds, personal, possessive, reflexive, emphasizing and demonstrative, 5 हमने कर लिया। बेटे पेपर के दिमाग का you'll come to know, don't worry about that. Ask me about the doubts of this chapter. अभी तक हमने आज जो वर्क किया उसके डाउट्स पूछने, अपने पेपर से रिलेटेड नहीं अभी कुछ पूछना। Yes. Ma'am, I have doubt.